Welcome to lecture series on balancing of rotating and reciprocating masses. Today we are going to discuss the balancing of several masses rotating in different plane problem. Problem is in this way. A shaft carries four masses A, B, C and D of magnitude 200 kg, 300 kg, 400 kg and 200 kg respectively. So magnitude of the four masses are given 200, 300, 400 and 200 kg respectively. And these masses are revolving at a radii 80 mm, 70 mm, 60 mm and 80 mm in the planes measured from the plane A at 300 mm. प्लेन ए से हर एक प्लेन का प्लेन ए प्लेन बी प्लेन सी प्लेन डी का डिस्टेंसेस दिया है. सो दिस प्लेन्स आर मेजर्ड फ्रॉम प्लेन ए. Plane B is at a distance of 300 mm, plane C is at a distance of 400 mm and plane D is at a distance of 700 mm. So position of plane, distance between the planes are given in mm. Then angles between the cranks measured anticlockwise are, angles between A and A to B is 45 degree, between B and C is 70 degree and C to D is 120 degree. So these angles between the cranks measured in anticlockwise directions are given. These angles are measured from the position of mass A. The balancing masses are to be placed in planes X and Y. The distance between the plane A and plane X is 100 mm. Distance between X and Y is 400 mm and between Y and D is 200 mm. So distances are given. Distance between plane A and X is 100, between X and Y is 400 mm and between Y and D is 200 mm. So if the balancing masses revolve at a radius of 100 mm, find their magnitudes. There are two balancing masses and these balancing masses are placed in a planes X and Y. Their magnitudes we have to calculate, that is mx and my we have to calculate, and the angular positions of these masses. So given data for this problem is in this way. The mass A, Ma is 200 kg, Mb is 300 kg, Mc is 400 kg and Md is 200 kg respectively. These are the Ma, Mb, Mc and Md magnitude of these four masses are given. And radii of rotations are 80 mm, 70 mm and 60 mm and again 80 mm. So Ra is equal to 80 mm, so we have to convert it into meter. So 80 divided by 1000 is 0.080 meter. Rb 70 mm, so 0.070 meter. Rc is 60 mm, so 0.060 meter. Rd is 80 mm, so 0.080 meter. And the balancing masses, there are two balancing masses which are placed at plane X and Y. Their radii of rotations will denote as Rx and Ry. These two balancing masses are rotating at radii, that is 100 mm. So it is 100 divided by 1000 is 0.100 meter. 0.100 meter. So let the balancing mass placed in a plane X is mx and balancing mass placed in a plane Y is my. So mx and my are the magnitude of two balancing masses placed in a plane X and plane Y respectively. Now the position of the planes and angular position of the masses, we'll discuss these two diagrams we have to draw separately on the sheet. ये प्रॉब्लम हमें ग्राफिकल शीट पे सॉल्व करना है बिकॉज इट इज दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड. और ये बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन का प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ प्लेन और एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस, ये दो डायग्राम हमें ड्रॉ करने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी. एंड अज्यूम द प्लेन एक्स एज द रेफरेंस प्लेन. प्लेन एक्स को हमने रेफरेंस किया है और प्लेन एक्स के राइट साइड में अगर डिस्टेंसेस है तो डिस्टेंसेस ऑफ द प्लेन्स टू द राइट ऑफ द प्लेन एक्स आर टेकन एज पॉजिटिव. प्लेन एक्स के राइट में जितने डिस्टेंसेस है वो हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है और जितने डिस्टेंसेस प्लेन एक्स के लेफ्ट साइड में है दैट डिस्टेंसेस वी हैव टू टेक एज अ नेगेटिव. So here we can see very first step that we have to do is draw the position of planes diagram. So here this first figure is the position of plane. So here this is a reference line, horizontal line, and very first position is the position of plane A. So position of plane A is this position. Distance between plane A and plane B is given in the problem, that is 300 mm. So I can show you. So these masses are kept in a planes measured from plane A at 300 mm. Means plane of B is 300 mm from plane of A. Plane of C is at 400 mm from plane of A, and plane of D, plane of rotation of mass D is 700 mm from plane of A. ए प्लेन से ये डिस्टेंसेस हमें दिए हैं प्रॉब्लम में, तो हम ये पोजीशन ऑफ फोर प्लेन्स इन विच फोर मासेस आर रोटेटिंग, उसके पोजीशन हम मार्क करेंगे. प्लेन ए से ये डिस्टेंस दिया है, प्लेन बी का डिस्टेंस दिया है 300 mm प्रॉब्लम में, और ए प्लेन ए से प्लेन सी का डिस्टेंस दिया है 400 mm एंड प्लेन ए से प्लेन डी का डिस्टेंस दिया है हमें 700 mm. यहाँ मेजरमेंट नहीं करना है, सिर्फ हमें कन्वीनियंटली ये डिस्टेंसेस यहाँ पे मार्क करना है. सो दीज आर द फोर प्लेन्स, प्लेन ए, बी, सी एंड प्लेन डी.
और सभी प्लेन्स का डिस्टेंस, प्लेन बी, प्लेन सी, प्लेन डी का डिस्टेंस ए से मेजर हो रहा है एंड दिस डिस्टेंसेस आर 300 mm, 400 mm एंड 700 mm respectively. So this is about position of plane A, B, C, D. Then it is mentioned in the problem that distance between plane A and X is 100 mm. यहाँ पे दिया है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड प्लेन एक्स इज 100 mm. तो एक्स प्लेन कितने डिस्टेंस पे है, ए प्लेन से 100 mm डिस्टेंस पे मार्क करना है हमें. एक्स प्लेन कितने डिस्टेंस पे है, 100 mm डिस्टेंस पे. कहाँ से, प्लेन ए से 100 mm डिस्टेंस पे एक्स प्लेन है. और बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेन डिस्टेंस इज 400 mm. एक्स और वाई में डिस्टेंस है 400 mm. तो ये हमें यहाँ पे समझना है. तो प्लेन एक्स, दिस इज द प्लेन एक्स, राइट. प्लेन एक्स शोन बाय डॉटेड लाइन, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm फ्रॉम प्लेन ए. और प्लेन एक्स और प्लेन वाई में डिस्टेंस दिया है 400 mm. ये गिवन डेटा है प्रॉब्लम में. तो प्लेन वाई हमें डॉटेड लाइन से मार्क करना है. प्लेन एक्स एंड प्लेन वाई आर द बैलेंसिंग मासेस प्लेन. सो ये डॉटेड से मार्क करना है. और ये डिस्टेंस प्लेन एक्स से वाई का, प्लेन वाई का डिस्टेंस है 400 mm. सो हियर दिस इज द पोजीशन ऑफ प्लेन डायग्राम. ये डायग्राम पहले हमें ठीक से प्रॉपरली ड्रॉ करना है. यहाँ गलती हो गया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है. तो ये हमें अच्छे से मार्क करना है. फिर यहाँ पे प्लेन एक्स हमें रेफरेंस कंसिडर करना है. प्लेन एक्स इज द रेफरेंस. देयर आर टू बैलेंसिंग मासेस. उसमें से एक मास हमें क्या करना है, एक मास का जो प्लेन है वो रेफरेंस करना है, ताकि एक ही अननोन रह जाएगा और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने प्लेन एक्स को रेफरेंस प्लेन कंसिडर किया है. तो रेफरेंस प्लेन एक्स से डिस्टेंस अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव कंसिडर करना है, और डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव कंसिडर करना है. तो यहाँ पे प्लेन ए का डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है तो ये डिस्टेंस हमें 100 mm या 0.1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो हमें निगेटिव कंसिडर करना है. ये कहाँ यूज होता है, कपल्स में यूज होता है. कपल इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू डिस्टेंस इज नथिंग बट कपल. तो डिस्टेंस अगर रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में है तो पॉजिटिव लेना है, और डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव लेना है. ये ध्यान में रखना है हमें, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है. तो पहला ए डायग्राम हमने कंप्लीट कर दिया इस प्रॉब्लम का, पोजीशन ऑफ प्लेन. दूसरा है बी डायग्राम, दैट इज एंगुलर पोजीशन ऑफ द मासेस. यहाँ पे चार जो मासेस है ए बी सी डी, उसका एंगुलर पोजीशन हमें मार्क करना है. यहाँ पे एंगुलर पोजीशन मार्क करना है. तो पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, ओ इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओ सेंटर ऑफ रोटेशन है ओ. यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मास ए हम कंसिडर करेंगे. तो प्लेन ए हमने हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर किया, और वहाँ पे मास हम एमए मास कितना दिया हमें 200 kg. ये मास हमने मार्क कर दिया, और उसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है 80 mm है. तो यहाँ पे मैंने RA इज इक्वल टू 80 mm लिखा है, 80 लिखा है यहाँ पे. तो 80 मीन्स इट इज RA इज इक्वल टू 80, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ मास ए विच इज केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. प्लेन ए रेफरेंस प्लेन है तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखेंगे, वो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखेंगे, और वहाँ से पूरे एंगल हम मेजर करेंगे. वहाँ से हम पूरे एंगल मेजर करेंगे. तो कीप द प्लेन ऑफ मास ए एज अ हॉरिजॉन्टल इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मासेस डायग्राम. तो यहाँ से ए टू बी हमें एंगल दिया है. यहाँ पे प्रॉब्लम में देखेंगे ये एंगल्स कैसे, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं. प्लेन ए हॉरिजॉन्टल है, ए टू बी एंगल है 45 डिग्री. तो ए टू बी में एंगल लेना है हमें 45 डिग्री मेजर फ्रॉम प्लेन ए. तो यहाँ से प्लेन ए ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, यहाँ से 45 डिग्री एंगल मेजर करना है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल मेजर करना है, और ये लाइन ड्रॉ करना है. सो दिस लाइन इज इंडिकेटिंग द एंगुलर पोजीशन ऑफ मास बी, एंड मास बी का मैग्नीट्यूड है 300 kg, एंड इसका रेडियस ऑफ रोटेशन है 70 mm. तो आर बी इज इक्वल टू 70 mm, राइट. और एंगल है, एंगल थीटा बी है 45 डिग्री. तो ये पहला पोजीशन मास बी का हमने मार्क कर दिया एट 45 डिग्री फ्रॉम प्लेन ए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सिमिलरली B2C एंगल दिया हमें, B2C एंगल यहाँ पे देखेंगे, B2C एंगल दिया है हमें 70 डिग्री, C2D एंगल दिया है 120 डिग्री. तो B2C C2D ये एंगल्स हमें मार्क करने. तो यहाँ से बी के पोजीशन से ये एंगल हमें मार्क करना है 70 डिग्री का. ये लाइन हमें ड्रॉ करना है, यहाँ ओरिजिन से ये लाइन ड्रॉ करना है. OC इज द इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ प्लेन C, एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री फ्रॉम प्लेन ऑफ B. प्लेन ऑफ B से ये 70 डिग्री एंगल पे पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ प्लेन C है. और मास MC कितना है 400 kg, और उसका रेडियस ऑफ रोटेशन है 60. तो ये मार्क कर दिया हमने. C2D एंगल दिया है 120. यहाँ से OC लाइन से ये 120 डिग्री एंगल मेजर करने वाला लाइन निकालना है. ये है पोजीशन ऑफ प्लेन D विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्लेन C. यहाँ से 120 डिग्री पे प्लेन D का एंगल हमने मार्क कर दिया 120. तो ये चार पोजीशन हमने मार्क कर दिए. A to B एंगल, A to B इज 45 डिग्री, B to C 70 डिग्री, C to D इज 120 डिग्री. तो इस तरह से ये पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस का डायग्राम हमें कंप्लीट करना है. एंगुलर पोजीशन ऑफ मास mx एंड मास my ये हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका एंगुलर पोजीशंस क्या है. एंगुलर पोजीशंस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो दिस इज अबाउट एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस, 4 मासेस A B C D. हियर एंगुलर पोजीशन ऑफ मास A इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस, एज अ हॉरिजॉन्टल एज अ रेफरेंस, और वहाँ से एंगल्स भी मेजर करना है. तो ये समझने के बाद ये डायग्राम करेक्टली हमें ड्रॉ करना है. एंगल्स में कोई एरर नहीं आना चाहिए. अगर 0.5 डिग्री का भी एंगल चेंज होता है तो आंसर्स हमारा डेविएट हो जाता है. तो यहाँ पे केयरफुली एंगल्स हमें मेजर करने.
बिकॉज दिस इज ग्राफिकल मेथड। तो ये एंगुलर पोजीशन मार्क करने के बाद हम अभी कैलकुलेशन टेबल प्रिपेयर करेंगे और फिर कपल पॉलीगॉन और फोर्स पॉलीगॉन हम ड्रॉ करेंगे। तो अभी कैलकुलेशन टेबल में हमें ऐसे कॉलम्स मार्क करने, planes. There are planes A, B, C, D, four masses in rotating in a planes A, B, C, D, and there are two balancing masses plane. These planes are plane X and plane Y. These are the planes of balancing masses, planes of rotation of the balancing masses X and Y. तो ये 6 मार्क कर दिया हमने, 6 रोज मार्क कर दिए। सो प्लेन A, B, C, D and plane X and plane Y. These planes are planes of balancing masses. Then second column is of mass M in kg. So mass Ma is 200 kg, mass B is 300 kg, mass C is 400 kg, and mass D is 200 kg. We can see from the problem figure. Problem में दिया है ये masses. The shaft carries 4 masses A, B, C and D of magnitude 200, 300, 400 and 200 kg. ये masses हमको यहाँ से लेने हैं, ये masses हमको यहाँ से लेने हैं. So Ma is 200, MB is 300, MC is 400 kg, and MD is 200 kg. Now balancing masses mx and my, their magnitudes are not known to us, so it is written as mx and my in the table. Then third column is of radius of rotation, that is r in meter, mass in kg and radius is in meter. So radius of rotations are also given. So radius of rotation of mass is 0.08 meter. प्रॉब्लम में ही दिया हमें ये रेडियस ऑफ रोटेशंस। 80 mm दिया है पहला, फिर ये 70 mm दिया है, ये 60 है, फिर ये 80 है। ए बी सी डी मासेस का रेडियस ऑफ रोटेशन है 80, 70, 60 एंड 80 mm। एम एम में है वो हमें मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। एम ए इज 80 डिवाइडेड बाय 1000, इट इज 0.08 मीटर। बैलेंसिंग मासेस देयर रेडियस ऑफ रोटेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इट इज 100 mm, सो 100 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.1 मीटर। बैलेंसिंग मासेस का रेडियस ऑफ रोटेशन दिया हमें। इफ द बैलेंसिंग मासेस रिवॉल्व एट अ रेडियस ऑफ 100 mm, फाइंड देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगुलर पोजीशन। इस तरह का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बैलेंसिंग मासेस इज गिवन 100 mm, सो 100 डिवाइड बाय 1000 इज 0.1 मीटर। तो ये आर एक्स और आर वाई रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस टू मासेस, बैलेंसिंग मासेस आर 0.1 मीटर रिस्पेक्टिवली। बैलेंसिंग मास बी का रेडियस ऑफ रोटेशन है 0.070, मास सी का 0.06 है, मास डी का 0.80 मीटर है। तो ये रेडियस आर हमने मीटर में हमने कैलकुलेट कर दिया है, यहाँ पे रेडियस आर मीटर में कैलकुलेट कर दिया। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा दिस मासेस आर माउंटेड ऑन अ सेम शाफ्ट। सभी मासेस एक ही शाफ्ट पे माउंट किए जाते हैं, तो शाफ्ट का जितना स्पीड है उतना ही सभी मासेस का स्पीड होगा। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है सभी मासेस का, दैट्स व्हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। उसको डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या है, एम इंटू आर, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू रेडियस। 200 इंटू 0.08 इज 16 kg मीटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम यूनिट क्या है, केजी, मास इन केजी एंड डिस्टेंस आर इज इन मीटर, सो केजी मीटर। So 200 into 0.08 is 16 kg meter is the centrifugal force acting on mass A in a radially outward direction. Centrifugal force का मैग्नीट्यूड होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा यहाँ सभी मासेस का सेम है, ओमेगा सेम है क्योंकि एक ही शाफ्ट पे सभी मासेस माउंट किए हैं, तो उनका स्पीड जो शाफ्ट का स्पीड होगा वही उनका स्पीड है, इसलिए डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर किया हमने, तो हमें ये टर्म मिल रहा है। सो मास इज 200 and radius is 0.08, 200 into 0.08 is 60 kg meter. Then 0.1 into mx is 0.1 mx, 300 into 0.07 is 21 kg meter force on mass B. On mass C, 400 into 0.06 is 24 kg meter is the centrifugal force acting in a radially outward direction on mass C. 0.1 into my is the centrifugal force acting on mass my, balancing mass my. ये दोनों 0.1 mx, 0.1 my ये हमें मालूम नहीं है, यहाँ नॉन फोर्सेस है। यहाँ पे mx and my is unknown, ये हमें ग्राफिकल से ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें फाइंड आउट करने हैं। ग्राफिकल से प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें फाइंड आउट करने हैं। फिर 200 into 0.08 is 16 kg meter ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने सभी फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर दिए। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास mx एंड my ये नोन नहीं है, हमें सिर्फ उसका इक्वेशन मिल गया है। फिर उसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हर एक मास पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो उसका रेफरेंस प्लेन x से डिस्टेंस कितना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो डिस्टेंसेस का हम कॉलम यहाँ देखेंगे नीचे डायग्राम में, पोजीशन ऑफ प्लेन्स डायग्राम में। ये एक्स प्लेन है, रेफरेंस प्लेन है। यहाँ से प्लेन ए का डिस्टेंस है 100 mm, तो 0.1 मीटर, और लेफ्ट साइड में है इसलिए -0.1। तो यहाँ पे टेबल में हमने ये वैल्यू लिया है -0.1। माइनस क्यों लिया, क्योंकि प्लेन एक्स रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस है 100 mm का, तो 100 डिवाइड बाय 1000 इज 0.1 मीटर, और ये लेफ्ट में डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव साइन लिया है 0.1 मीटर। फिर रेफरेंस प्लेन का डिस्टेंस कितना है, रेफरेंस प्लेन का डिस्टेंस वहाँ से 0 है। रेफरेंस प्लेन एक्स इज रेफरेंस प्लेन, तो वहाँ से डिस्टेंस शुरू हो रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू में यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, क्योंकि रेफरेंस प्लेन एक्स से उसका खुद का डिस्टेंस 0 है, राइट। अभी प्लेन बी का डिस्टेंस देखिए, प्लेन बी का डिस्टेंस कितना है, प्लेन ए से 300 mm है, प्लेन ए से 300 mm है, और प्लेन ए और एक्स में 100 mm डिस्टेंस है, तो एक्स और बी में कितना डिस्टेंस हुआ, 200 mm।
300 minus 100 is the 200 mm distance is the distance between plane X and plane B. ये अच्छे से कैलकुलेट करना है वरना प्रॉब्लम गलत हो जाएगा. तो प्लेन ए और plane B, if we consider plane B is at a distance of 300 mm from plane A, and plane A and plane X इसमें distance है 100 mm. तो 300 minus 100 is 200 mm is the distance between plane X and plane B. और ये distance राइट साइड में है, प्लेन X के राइट साइड में है, तो पॉजिटिव कंसिडर करना है. 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.2 मीटर. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस लेना है प्लेन बी का, प्लेन एक्स से डिस्टेंस है 0.2 मीटर और राइट साइड में इसलिए पॉजिटिव लेना है. सिमिलरली प्लेन सी का डिस्टेंस हमें देखना है. यहाँ पे फिगर में प्लेन सी का डिस्टेंस कितना है, प्लेन ए और प्लेन सी में 400 mm डिस्टेंस गिवन है, प्लेन ए और एक्स में 100 mm डिस्टेंस है. तो 400 माइनस 100 इज 300 mm इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एक्स एंड प्लेन सी. तो 300 डिवाइड बाय 1000 इज 0.3 मीटर. सो सी का डिस्टेंस, प्लेन सी का डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन से कितना है, प्लस 0.3 मीटर, प्लस है क्योंकि राइट साइड में. सिमिलरली प्लेन वाई का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. प्लेन वाई का एक्स और वाई में गिवन है डिस्टेंस, ये एक्स और वाई में कितना है, 400 mm का डिस्टेंस है. सो 400 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.4 मीटर. और ये प्लेन वाई का डिस्टेंस एक्स से राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव. तो प्लेन वाई का डिस्टेंस है 0.4 मीटर एंड दैट इज ऑन द राइट साइड, दैट्स राइट इज पॉजिटिव. सिमिलरली प्लेन डी का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. प्लेन डी का डिस्टेंस, प्लेन ए और डी में डिस्टेंस है, प्लेन ए और प्लेन डी में डिस्टेंस है 700 mm का गिवन है ये डिस्टेंस, और प्लेन ए और एक्स में 100 का है डिस्टेंस. सो 700 माइनस 100 इज 600 डिवाइड बाय 1000 इज 0.6 मीटर. और ये राइट साइड में है, रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में है ये डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव 0.6 मीटर. तो इस तरह से हम ये डिस्टेंसेस मार्क कर दिए, सभी डिस्टेंसेस मार्क कर दिए. तो अभी नेक्स्ट कॉलम आता है कपल वैल्यू. सो कपल इज नथिंग बट इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज m into r into l. M or L is nothing but couple. Force into distance is nothing but couple. Centrifugal force is M into R, and L is nothing but distance of that force from the reference plane. So M or L is the couple value, and couple unit is kg into meter square. Centrifugal force का unit है kg meter into meter. So kg meter square is the unit of the couple. kg meter square is the unit of couple in the problem. So we have to take the product of 16 into minus 0.1. So 16 into minus 0.1 is minus 1.6. 0.1 mx into 0 is 0. 21 into 0.2 is 4.2 kg meter square of couple. 24 into 0.3 is 7.2 kg meter square of couple. And 0.1 my into 0.4, 0.1 my into 0.4 is 0.04 my is the magnitude of couple. And 16 into 0.6 is the 9.6 kg meter square of the couple. So in this way we have to carefully complete this table. यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करना है. अगर ये टेबल गलत होगा तो आगे जाके पूरा प्रॉब्लम गलत होगा और उसका जो टाइम लगता है ग्राफिकल मेथड में वो पूरा वेस्ट हो जाएगा. So prepare the table very carefully, check it twice and then proceed further problem. फिर ये टेबल अच्छे से चेक करने के बाद ही प्रॉब्लम आगे बढ़ना है, वरना प्रॉब्लम यहाँ पे गलत हो सकता है, पूरे मार्क चले जाएंगे. तो ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड आसान है, हमें ये समझना है स्टेप बाय स्टेप. तो इस तरह से ये कैलकुलेशन टेबल हमने बना दिया. यहाँ पे अगर देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे तो कपल पॉलीगॉन के कॉलम में एक ही अननोन है. कपल के इसमें एक ही अननोन है, तो हम पहले कपल पॉलीगॉन कंप्लीट करेंगे क्योंकि उसमें एक ही अननोन है. हमें डायरेक्ट रिजल्टेंट जो मिलेगा, रिजल्टेंट कपल का जो वेक्टर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0.04 my करेंगे एंड वी गेट द आंसर my. तो यहाँ पे कपल पॉलीगॉन हम पहले करेंगे. क्यों कि अगर फोर्स के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ दो अननोन है, 0.1 mx भी है, 0.1 my भी है. तो दो अननोन रहेंगे तो पॉलीगॉन हम कंप्लीट नहीं कर सकते. तो हमें यह फोर्स पॉलीगॉन पहले नहीं कंप्लीट करना क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है. फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन मास mx एंड my, ये दो फोर्स के मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं है क्योंकि mx and my is not known. That's why we cannot complete the force polygon first, but we can complete the couple polygon because there is only one unknown, and the last vector of this polygon indicates the resultant couple acting on the system, and that is equal to 0.04 my करके हम my का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे. my क्या है, बैलेंसिंग मास प्लेस्ड इन अ प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ y. तो हम पहले कपल पॉलीगॉन कंप्लीट करेंगे. तो कपल पॉलीगॉन तीसरा डायग्राम हमें कंप्लीट करना है. कपल पॉलीगॉन तीसरा डायग्राम कंप्लीट करना है कपल पॉलीगॉन का. तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, कपल के मैग्नीट्यूड्स देखेंगे, पहला है -1.6, दूसरा है 4.2, तीसरा है 7.2, चौथा है 9.6, राइट. ये वैल्यू है. तो मिनिमम वैल्यू है 1.6 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 9.6. मैक्सिमम वैल्यू 9.6 kg मीटर स्क्वायर है और मिनिमम है 1.6. तो हम स्केल लेंगे इस पॉलीगॉन के लिए, स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल. मिनिमम है 1.6 एंड मैक्सिमम इज 9.6. तो हमारा मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कपल वेक्टर कितना आने वाला है, 9.6 सेंटीमीटर आने वाला है. तो ओके, और मिनिमम 1.6 आ रहा है सेंटीमीटर, तो ये भी ठीक है. तो स्केल इस तरह से लेना है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू कंसीडर करके स्केल सेट करना है कपल पॉलीगॉन के लिए. तो
कपल पॉलीगॉन हम कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए स्केल हमने चूज किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल, 1 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल, ये स्केल हमने चूज कर दिया। तो कपल पॉलीगॉन सी डायग्राम इज अ कपल पॉलीगॉन। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमने ओ डैश लिया बिकॉज सेंटर ऑफ रोटेशन इज ओ। सो पहला मास कैसे है, देखिए पहला मास कैसे हॉरिजॉन्टल है, मास ए इज हॉरिजॉन्टल, इट इज अ रेफरेंस मास, इट इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। तो अगर कपल का वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन में आउटवर्ड कपल दिखाना है अलोंग द प्लेन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव है तो ये। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम मास ए पे जो कपल एक्ट हो रहा है वो -1.6 है। माइनस मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट, दैट इज रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे यहाँ कपल का जो वेक्टर है ए को पोजीशन ऑफ ए को पैरेलल और लेफ्ट साइड में लेना है, लेफ्ट साइड में क्यों, ये कपल निगेटिव है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन होगा। मास ए पे फोर्स कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, लेकिन कपल निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, कपल फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है, कपल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ये कपल वेक्टर मार्क करना है एंड हॉरिजॉन्टल है। ये ओ ए का पोजीशन कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टली ये ओ डैश से लेफ्ट साइड में मार्क करना है, लेफ्ट साइड में ये कपल मार्क करना है बिकॉज इट इज निगेटिव। अगर पॉजिटिव होता तो राइट साइड में मार्क करते, हॉरिजॉन्टली राइट साइड, ये निगेटिव है तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड, निगेटिव है तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड, और उसका मैग्नीट्यूड है 1.6 -1.6 kg मीटर स्क्वायर। तो हमारे स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 kg मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये ओ डैश टू ए डैश वेक्टर हमें मार्क करना है 1.6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल है। तो ये वेक्टर हमें ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हमें मार्क करना है और डिस्टेंस लेना है, उसका मैग्नीट्यूड है -1.6 kg मीटर स्क्वायर। तो स्केल के हिसाब से 1.6 सेंटीमीटर पे ए डैश पॉइंट मार्क करना है। तो वेक्टर ओ डैश टू ए डैश रिप्रेजेंट द सेंट्रीफ्यूगल कपल एक्टिंग ऑन मास ए एंड इट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे -1.6 kg मीटर स्क्वायर। तो ये पहला वेक्टर हो गया ओ डैश टू ए डैश इज द कपल वेक्टर ऑन मास ए एंड इट इज नेगेटिव -1.6 kg मीटर स्क्वायर, सो एज पर स्केल इट इज 1.6 सेंटीमीटर। तो ये ठीक से समझना है, ये ग्राफिकल मेथड है, तो ये सब हमें अच्छे से समझना है। तो ए डैश पॉइंट से अभी पोजीशन ऑफ प्लेन बी, ये मास बी का एंगुलर पोजीशन कितना है 45 डिग्री है, तो इसको रूल एंड ड्रॉ हमारा सेट करना है अलोंग, इसको रूल एंड ड्रॉ सेट करना है, अलाइन करना है रूल एंड ड्रॉ का स्केल। और इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मास बी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे रहेगा, यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। मास बी पे कपल देखते हैं कितना है, मास बी पे कपल कितना है 4.2, मास बी पे कपल कितना एक्ट हो रहा है 4.2 kg मीटर स्क्वायर एंड इट इज पॉजिटिव मतलब फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन कैसे, यहाँ पे देखिए फोर्स का डायरेक्शन कैसे, रेडियली आउटवर्ड। तो इस पोजीशन अलोंग दिस 45 डिग्री और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से वेक्टर मार्क करना है हमें। ए डैश टू बी डैश, ये वेक्टर का एंगल कितना है 45 डिग्री है, क्योंकि ए और बी में एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो बी को अलाइन करके ये वेक्टर हमें ड्रॉ करना है ऊपर वाले डायरेक्शन में, ऐसे ए डैश टू बी डैश, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4.2 kg मीटर स्क्वायर। तो एज पर स्केल ये कितना आएगा 4.2 सेंटीमीटर, बिकॉज आवर स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल। तो ये ए डैश टू बी डैश ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कपल वेक्टर ऑन मास बी विच इज अ टर्न एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द मास ए, मास ए से 45 डिग्री पे ये मास बी है, तो उसका कपल वेक्टर इंडिकेट कर रहा है ए डैश टू बी डैश, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4.2 kg मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन ऊपर वाले डायरेक्शन में, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में है, बिकॉज दैट कपल इज पॉजिटिव, टेबल में वो पॉजिटिव वैल्यू है बी का, कपल का। तो ये समझ में आया होगा, ए डैश टू बी डैश इज द कपल वेक्टर ऑन मास बी। फिर बी डैश से हमें सी का पोजीशन देखिए, सी का पोजीशन कैसे, बी और सी में 70 डिग्री का एंगल है, तो सी को अलाइन करना है, रूल एंड ड्रॉ अलाइन करके यहाँ पे बी डैश से ये वेक्टर का डायरेक्शन हमें मार्क करना है। बी डैश पॉइंट यहाँ पे है, बी डैश से ये बी टू सी एंगल है 70 डिग्री का, तो सी को अलाइन करना है रूल एंड ड्रॉ, और यहाँ पे बी डैश से लाइन वेक्टर का लाइन निकालना है। तो यहाँ पे सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू टेबल में देखिए, ये 7.2 kg मीटर स्क्वायर है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन यहाँ आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड बाहर जा रहा है, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, इनवर्ड मतलब सेंटर की तरफ आ रहा है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो कपल अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क करना है, फोर्स के डायरेक्शन में मार्क करना है। तो यहाँ सी पोजीशन सी को रोल एंड ड्रॉ पैरेलल रखेंगे, और यहाँ पे बी डैश पॉइंट से एक पैरेलल लाइन निकालेंगे, सी पोजीशन को पैरेलल लाइन निकालेंगे, और इस कपल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है टेबल से 7.2 kg मीटर स्क्वायर, 7.2 kg मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बी डैश से ये वेक्टर का लेंथ हमें मार्क करना है 7.2 सेंटीमीटर, बिकॉज आवर स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल। तो बी डैश टू सी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 7.2 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल एक्टिंग ऑन मास सी विच इज इंक्लाइंड एट 70 डिग्री फ्रॉम मास बी, राइट। तो बी डैश टू सी डैश ये कौन सा कपल वेक्टर है, कपल एक्टिंग ऑन मास सी, दैट इज 7.2 kg मीटर स्क्वायर। फिर अभी सी से डी कितने एंगुलर पोजीशन पे है,
सी से ये डी का एंगल है 120 डिग्री। तो यहाँ पे रोल एंड ड्रॉ डी को पैरेलल रखना है, रोल एंड ड्रॉ डी को अलाइन करना है और यहाँ से सी डैश से एक लाइन निकालना है नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि डी पे जो मास डी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसलिए ये वेक्टर डी, पोजीशन ऑफ डी को अलाइन करके यहाँ से ये वेक्टर का लाइन निकालना है हमें। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, कपल ऑन मास डी इज 9.6। यहाँ टेबल में देखिए 9.6 है कपल डी, मास डी पे कपल कितना है 9.6 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल है। तो ये कपल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, यहाँ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही कपल होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। और मास डी के पोजीशन को अलाइन करके यहाँ पे वेक्टर निकालना है हमें सी डैश टू डी डैश। सो सी डैश टू डी डैश, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स कपल ऑफ 9.6 kg मीटर स्क्वायर एक्टिंग ऑन मास डी विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री फ्रॉम द मास सी। तो यहाँ से सी डैश टू डी डैश ये कपल वेक्टर हमें मार्क करना है आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कपल का डायरेक्शन होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन सी डैश से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कपल वेक्टर हमने मार्क कर दिया और मैग्नीट्यूड 9.6 kg मीटर स्क्वायर, तो 9.6 सेंटीमीटर इतना हमने मार्क कर दिया। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होगा। चार कपल वेक्टर्स हमने मार्क कर दिए। पहला ओ डैश टू ए डैश कपल एक्टिंग ऑन मास ए दैट इज -1.6। दूसरा है ए डैश टू बी डैश कपल वेक्टर एक्टिंग ऑन मास बी 4.2 kg meter square. Then couple acting on mass C is 7.2 kg meter square and represented by B dash C dash, and C dash to D dash is a couple vector acting on mass D and its magnitude is 9.6 kg meter square of couple. Now D dash to O dash, D dash now join D dash to O dash, not E dash. Here the answer is wrong. D dash to O dash, join D dash to O dash, that represents the couple acting on mass. Couple acting on mass D, right? और this is resultant couple. तो यहाँ पे D dash to O dash ज्वाइन करना था, यहाँ थोड़ा गलत हो गया था पहले, अभी करेक्ट करके मैं ये ड्रॉ कर दिया। D dash to O dash ये वेक्टर ज्वाइन करना है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग कपल ऑन मास my। मास my पे ये बैलेंसिंग कपल है या रिजल्टेंट कपल है। तो बैलेंसिंग कपल ऑन मास my इज ऑफ मैग्नीट्यूड 0.04 my। सो मास my पे बैलेंसिंग कपल का मैग्नीट्यूड कितना है 0.04 इंटू my, इतने मैग्नीट्यूड का ये कपल है। तो ये वेक्टर D डैश टू O डैश ये वेक्टर हमें मेजर करना है, दैट इज इक्वल टू 0.04 my, दैट इज कपल वेक्टर ऑन मास my। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम देखेंगे फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ द कपल पॉलीगॉन से ये बैलेंस कपल O डैश टू D डैश वेक्टर कितना आ रहा है 7.9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमारा स्केल कितना था, स्केल था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल। तो जितने सेंटीमीटर है उतना ही कपल का मैग्नीट्यूड है, तो दैट इज इक्वल टू 0.04 इंटू my, बिकॉज my कपल के कॉलम में सिर्फ ये कपल हमें अननोन था, तो ये कपल अननोन था, तो ये रिजल्टेंट कपल मतलब 0.04 इंटू my। और ये कपल कौन से मास पे एक्ट हो रहा है, my मास पे एक्ट हो रहा है। तो दैट इज इक्वल टू बैलेंस कपल और रिजल्टेंट कपल इन दिस प्रॉब्लम, रिजल्टेंट कपल इज इक्वल टू 7.9 kg मीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0.04 my। सो my इज इक्वल टू 7.9 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये आंसर आ रहा है 197.5 kg। अप्रोक्सीमेटली उसको करेंगे हम 198 kg। तो बैलेंसिंग मास जो है my उसका मैग्नीट्यूड कितना है 198 kg। अगर ये बैलेंसिंग करना है तो मास my कितना आया 198 kg। और उसका एंगल कितना है वो हमें एंगल मेजर करना है। यहाँ पे ये एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर O dash to D dash with the horizontal line, because mass A its position is horizontal line। so इसको अलाइन करना है रोल एंड ड्रॉ, और यहाँ O पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे एंगुलर पोजीशन में उसका पोजीशन मार्क करना है। तो O dash to D dash कपल वेक्टर को पैरेलल यहाँ पे एक लाइन निकालना है, और वो लाइन है O dash to O to Y and this mass is my। so this is the position, angular position of mass my, डॉटेड लाइन से दिखाना है। और उसका एंगल कितना है थीटा y इक्वल टू 20 डिग्री। क्लॉकवाइज एंगल है, प्लेन ए से अगर क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो 20 डिग्री है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करना है तो 360 माइनस 20 340 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम प्लेन ए। हॉरिजॉन्टल मास ए से इस मास my का एंगल कितना है 340 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 डिग्री। इस तरह से एंगुलर पोजीशन हमने उस मास का फाइंड आउट कर दिया। ये एंगुलर पोजीशन है और ये मास का मैग्नीट्यूड है। तो बैलेंसिंग मास इतने 198 में kg मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, और उसका एंगुलर पोजीशन 340 डिग्री फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम मास पोजीशन ऑफ मास ए से 340 डिग्री पे ये मास हमें रखना होगा। और बैलेंसिंग रेडियस कितना है 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है बैलेंसिंग रेडियस। तो कपल पॉलीगॉन से हमें my और थीटा y मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मास my एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ मास my हमें मिल गया। फिर हमें कैलकुलेट करना है, अभी नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है फोर्स पॉलीगॉन। तो फोर्स पॉलीगॉन के लिए हमें ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स हमें देखने होंगे। फोर्स के मैग्नीट्यूड इस तरह से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास A is 16 kg मीटर
centrifugal force on mass mx is 0.1 into mx. B mass B पे force है 21, 24.1 my and 16 kg मीटर रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे my हमें मिल गया. तो my का वैल्यू कितना था? my का वैल्यू 198 kg था. तो ये 198 kg my का वैल्यू था 198 kg. तो उसके हिसाब से हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना होगा. ये फोर्स कैलकुलेट करना होगा 0.1 into my, and my is 198. So 19.8 is the magnitude of centrifugal force acting on mass my. So centrifugal force on mass y is of magnitude 0.1 into my. Centrifugal force on mass y is 0.1 into my, and my हमने कैलकुलेट किया था my 198 kg. So 0.1 of 198 is 19.8 kg. So 19.8 kg meter is the force centrifugal force on mass my. मास my पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड है 19.8. तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 kg मीटर ऑफ फोर्स. 19.8 डिवाइडेड बाय 4 तो 4.9 समथिंग आता है. तो ये डिस्टेंस d2e कितना लिया हमने? d2e हमने लिया 4.9 सेंटीमीटर, एंड इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन मास my विच इज एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम ए. इसको पैरेलल यहाँ पे d2e वेक्टर हमने मार्क कर दिया. my मास को पैरेलल रोल एंड ड्रॉ रखा और यहाँ पे d2e वेक्टर हमने मार्क कर दिया d2e, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 19.8 kg मीटर. तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4.9 सेंटीमीटर इतना वेक्टर का लेंथ आया. डी वेक्टर रिप्रेजेंट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास my विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 into my. तो ये मार्क कर दिया हमने. फिर अभी लास्ट जो बचा दिस इज वेक्टर O2e. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर. So resultant force vector, and this is a closing vector, so it is directed towards the point O. So O2e represents the balancing force on mass mx. mx पे जो फोर्स है वो हमें फोर्स मिल गया 0.1 into mx is equal to वेक्टर O2e. उसको स्केल से मल्टीप्लाई करके हमें mx मास मिल जाएगा. तो वेक्टर O2e हमने मेजर कर दिया. यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम द फोर्स पॉलीगॉन बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, ये वेक्टर कितना लेंथ का है? 8.4 सेंटीमीटर. ये 8.4 है, यहाँ पे करेक्ट करना है. 8.4 सेंटीमीटर. 8.4 सेंटीमीटर का ये वेक्टर O2e आया. ये वेक्टर O2e, this vector is 8.4 centimeter long, and this vector is a closing vector, so it represents the balance force on mass mx, and that is 0.1 into mx. तो 0.1 into mx is equal to 8.4 is the length of the vector, और हमारा स्केल कितना था फोर्स पॉलीगॉन के लिए? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 kg मीटर ऑफ फोर्स. सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. 8.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 ये आता है 33.6. सो 0.1 mx is equal to 33.6. therefore mx is equal to 33.6 divided by 0.1, वो आता है 36 kg. तो सेकेंड बैलेंसिंग मास का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया. ये आंसर है हमारा, ये आंसर है. यहाँ पे my और थीटा y भी आंसर था, ये भी आंसर था. तो mx मिल गया 336 kg. एंड ये कहाँ पे होगा? इसका पोजीशन कहाँ पे होगा? तो डायग्राम में देखेंगे. O2e जो वेक्टर है इसको पैरेलल हमें यहाँ पे पोजीशन ऑफ मास मार्क करना है. O2e वेक्टर को पैरेलल यहाँ पे पोजीशन मार्क करना है. एंगुलर पोजीशन में ये O2e वेक्टर को ये पैरेलल पोजीशन मार्क करना है. दिस इज द पोजीशन ऑफ मास mx. और इसका एंगल अगर मेजर करेंगे, ए से क्लॉकवाइज एंगल है 147 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल है 147 डिग्री मेजरमेंट के बाद क्लॉकवाइज फ्रॉम ए, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना है? 360 माइनस 147, सो इट इज 213 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ए. ये किसका पोजीशन ऑफ मास mx का एंगुलर पोजीशन है. एंगुलर पोजीशन 213 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम मास ए. दिस इज द एंगुलर पोजीशन आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. इन दिस वे हमने my इज 198 kg, थीटा y इज 340 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ए, ये फाइंड आउट किया. मैग्नीट्यूड ऑफ मास my इज 198 kg, एंड इसका एंगुलर पोजीशन है 340 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पोजीशन ऑफ ए. और mx का मैग्नीट्यूड हमने फोर्स पॉलीगॉन से फाइंड आउट किया. जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स आया था हमारा 33.6 kg मीटर, एंड फ्रॉम दैट वी हैव कैलकुलेटेड mx दैट इज 336 kg इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंसिंग मास mx. और उसका एंगुलर पोजीशन कितना था? एंगुलर पोजीशन है 213 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ए. इस तरह से ये ग्राफिकल से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा, प्रिसाइजली वेक्टर्स वो मार्क करने होते हैं. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम 9 या 10 मार्क्स के लिए डेफिनेटली ये इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है. तो हमें ग्राफिकल मेथड का प्रैक्टिस करना है, और ये प्रॉब्लम आपको ड्राइंग शीट पे करना है. मैंने ये A4 साइज पेपर में किया है, तो इसलिए प्रॉब्लम कंजेस्टेड हो गया. तो आपको ये सीट पे ड्रॉ करना है. So thank you very much. See you in the next lecture on another important problem on balancing of rotating masses in different planes for 9 marks. Thank you.